चैनल। इस वीडियो में मैं कैट 2024 स्लॉट 2 के पहले 10 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। आई विल ट्राई टू गो थ्रू ईजियर बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द व्यूअर्स। बाकी एक क्वेश्चन आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन 3 to the power 333 is divided by 11, what is the remainder? Now it sounds scary but नहीं यार, सिंपल है. Let's understand the pattern. So we can do by two methods, but we can do this question by pattern based, and the other way is to solve this question through Euler's theorem. Okay, let's understand the pattern. Now 3 to the power 333 को हम लोग अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो पैटर्न कैसा होगा ना? पैटर्न के लिए ना वी कैन सी 3 to the power 5 is 243, राइट? नाउ लुक एट द फॉर द 11 का मल्टीपल आसपास को यहाँ पे देखें क्या ना? 243 11 का मल्टीपल क्या होगा? 11 to 22 एंड 11 to 22, राइट? सो यू गेट -1. तो इस पूरे नंबर को विल ब्रेक इट डाउन लाइक ऐसे, इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं. और 333 को हम लोग ब्रेक करेंगे 300 + 3 में. नाउ दिस पार्ट को आई कैन राइट डाउन लाइक 66 into 3, राइट? 3 to the power 3. इस पूरे पार्ट को हम लोग ऐसे ब्रेक कर लेते हैं. अगर ना सपोज करो ना 243 है, अगर मैं उसको 11 से डिवाइड करता हूँ ना, वुड बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर वुड बी 1. अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 11 से तो रिमाइंडर आएगा 1. तो इस पूरे पार्ट का रिमाइंडर कितना होगा? 1, राइट? अब बाकी बचा 3 to the power 3 by 11. नाउ दिस इज 27. 27 को अगर 11 से डिवाइड किया तो गेट 5 एज अ रिमाइंडर. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5, विच इज़ अ बेस्ड ऑन पैटर्न. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग अ यूलर थ्योरम ऑल्सो. ना यूलर थ्योरम इज क्वाइट सिंपल. आपको बस यूलर थ्योरम अगर पढ़ना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. आई टेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट. बट एनी वे, लेट्स सी हाउ यूलर वर्क्स. सो 333 इज द पावर ऑफ 3 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो यूलर नंबर ऑफ 11 विल बी 10, राइट? सो 333 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा बाई 11, I still get a bigger number, which is 3. Now is the remainder of this entire thing, which is again 27 by 11. तो 27 को 11 से डिवाइड किया तो still remainder 5 आएगा, which is quite easier way to solve this question, right? Now this is Euler theorem. If you want, I can take it in the next video. Do let me know. Let's take the next question. If x and y satisfy the equation mod x plus y equal to 15 and x plus mod y minus mod y equal to 20, find the x minus y. So quite simple. We can't take it minus. इस mod x की वैल्यू -x नहीं ले सकते और कैंसिल आउट होकर y 15 आ जाएगा. तो टेक इट एज अ पॉजिटिव, बिकॉज वी ऑल नो कि x mod x हैज़ अ 2 different values, positive x and -x. So let's take it positive side पे only. So 2x plus y equal to 15. Let's call it equation number 1. And second one, x minus 2y equal to 20. Now एक इक्वेशन को कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको डबल करके. तो आई जस्ट री राइट 4x plus 2y equal to 30, x minus 2y equal to 20. If I cancel out, I get 5x equal to 50 and x equal to 10. Now if x is equal to 10, find the value of y also. So I put in the equation number 1, so 20 plus y equal to 15. Now I get the value of y as a -5. Now they're asking for the value of x minus y. तो x minus y का value होगा 10 plus 5, that is 15. So the answer of this question will be 15. Alright, let's move to the next question now. If m and n are natural numbers such that n is greater than 1 and m to the power n equal to 2 to the power 25 and 3 to the power 40, then m minus n equals. Now this question looks so scary because there are powers which are way too much, but it actually not a difficult question. What we need to do is कि हमें ना राइट हैंड साइड पे भी m to the power n फॉर्म में नंबर को क्रिएट करना है. सो वी कैन डू बाय सिंपली रेजिंग द वैल्यूज़. सी 2 to the power 5, 25 एंड 3 to the power 40 को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं सम ऑफ पावर 5 पे, राइट? वी कैन डू बाय जस्ट 5 एंड 3 to the power 8 और उसको ले आते हैं बाहर 5. Now this is 32 and this is 81 into 81, right? Now this looks a bit of too much calculative, so I would recommend you to use calculator. If you are not comfortable, go ahead with use and
एंड यूज़ अ कैलकुलेटर. नाउ यू विल सी कि यहाँ पर आ जाएगा 209,952 एंड 5. नाउ इफ़ यू जस्ट कंपेयर द वैल्यूज़ तो m की वैल्यू मिल गई मुझे 209952 एंड n की वैल्यू मिल गई 5. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज यू गेट 209947. It's a quite easy question but too much calculation. If you use calculator wisely you can solve this question quickly. Let's move to the next one. Question है ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB is parallel to CD. AB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, CD is 1 सेंटीमीटर एंड टोटल पेरीमीटर है 6 सेंटीमीटर. तो ट्राइंगल AEB का पेरीमीटर क्या होगा? दिस इज़ फॉर ज्योमेट्री लवर्स. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. लेट्स मेक इट अ ट्रेपेजियम. ये दोनों लाइन पैरेलल है. नाउ इमेजिन कि दिस इज A, दिस इज B, C एंड D. ओके लेट्स स्विच द वैल्यूज. ठीक है, A, B, C, D. Why I did this thing? Because AB is 2 सेंटीमीटर. So ये 2, ये 1. They are saying if AD is stretched and BC is stretched also, तो ये दोनों मिलके एक पॉइंट पे जाके मिलेंगे which is called the E point. Right? Now these two are parallel lines. तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये वाला एंगल इक्वल होगा. तो we can apply similarity. If you want to know similarity, do let me know. I'll explain in the next video. Okay, पूरे ABCD का जो पेरीमीटर है दैट इज 6. तो ये 1 है, ये 1 है. तो लेट्स कॉल इट x एंड y. तो ये x प्लस वाई कितना होगा? ये होगा 3. वी जस्ट नीड टू डिटरमाइन कि ये कितना होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है AEB का पेरीमीटर. नाउ इफ़ यू नोटिस कि यहाँ पे अगर ये सिमिलैरिटी लगाता हूँ तो मुझे DE बाई AD विल बी सिमिलर टू विल बी इक्वल टू EC बाई BC. तो टेक्निकली ये भी x होगा, ये भी y हो जाएगा. So if you are asking for the entire perimeter, so it will be 2 plus 2x plus 2y. So if you take it out 2 common, so it will be x plus y and x की value we already know which is 3. तो हम लोग multiply कर देंगे 2 3 is 6 और ये it will be 8. So the perimeter of this triangle AEB will be 8 centimeter. Alright, if you want to know about this similarity thing, do let me know. I'll explain in the videos. This video is only to solve the question only. Beena incurs 19% loss when she sells a product at 4,860 to Shyam, who in turn sells the same product to Hari. If Beena would have sold this product to Shyam at the purchase price of Hari, she would have obtained 17% profit. The profit made by the Shyam. Okay, बहुत simple सा question है. Let's assume कि CP is equal to 100x. Now Beena incurs a loss, so basically she is selling the article at 81x, which is 81x की value we already know, which is 4,860. Then the value of x will be 6t. So we know original price हो जाएगा इसका 6,000. बीना ने सेल किया एट 4,860. हु इन टर्न ना शाम ने इतने भी परचेज किया 4,000. ये शाम का कॉस्ट प्राइस हो गया. नाउ श्याम हु इन टर्न सेल्स द सेम दिस प्रोडक्ट टू हरी. अब इसने हरी को सेल किया. इफ़ बीना वुड हैव सोल्ड द प्रोडक्ट टू श्याम एट द परचेज प्राइस ऑफ हरी, शी वुड हैव ऑब्टेन 17% प्रॉफिट. ओके, नाउ 17% प्रॉफिट कितना होगा यहाँ से? बहुत सिंपल सा है. नाउ लेट्स कैलकुलेट 17% प्रॉफिट. लेट्स सी 17% प्रॉफिट. 6,000 का 17% प्रॉफिट लगाएंगे तो इट विल बी 7,020. तो यहाँ से आ जाएगा 7,020. देन द प्रॉफिट मेड बाय द शाम. तो बेसिकली शाम ने परचेज किया इतने का 4,860 का एंड ही सोल्ड इट टू हरी एट अ प्राइस ऑफ 7,020. सो एक्चुअली प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका? ही इज़ अर्निंग 2,160 रुपीज़. सो ये उसका प्रॉफिट हो गया. ऑलराइट, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. क्वेश्चन नंबर 6. Now this question looks a bit difficult but है नहीं.
एक इनफाइनाइट सीरीज़ है तो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली जीपी। बस एक पैटर्न समझना है। पैटर्न कैसा है यहाँ पे, इफ़ यू नोटिस अगर मैं पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ तो इट विल बी 1/5² माइनस 1/5 इंटू 1/7। इफ़ यू नोटिस अगर मैं सेकेंड वाले को भी ओपन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 4 माइनस 1/5 टू द पावर 2 इंटू 1/7 टू द पावर 2। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जीपी एक अलग यूज़ करूँगा और इसके लिए एक अलग जीपी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो 1/5 वाली जीपी को यूज़ करते हैं हम लोग। तो इनिशियल वैल्यू है 1/5 स्क्वायर 1 माइनस, और ये हर बार कितना 1/5² ऐड हो रहा है। बेसिकली कॉमन रेशियो इसका ये है, हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में ऐसे निकालते हैं। सो 1/25 यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/25। सो दिस विल बी 1/25 24/25, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आया 1/24। सेम हम लोग ना एक और जीपी यूज़ कर लेते हैं 1/5 एंड 1/7 वाला। तो इसमें भी ये इनफाइनाइट चल रही है, बट यहाँ पे ध्यान रहिए माइनस में है तो बाद में माइनस कर लेंगे हम लोग। तो पहला नंबर है 1/5 इंटू 1/7, और ये हर बार इतना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/35 हर बार ऐड हो रहा है। सो 1/35, सो 34/35। नाउ 35 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 मिला 34। नाउ ध्यान रहे यहाँ पे माइनस था, तो आई जस्ट एडिड ऑल द नंबर्स, तो बाद में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि एट दी एंड ये प्लस माइनस चल रहा था। तो 1/24 माइनस 1/35 34 सॉरी। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 24 एंड 34 का एलसीएम होता है 8 17 एंड 3, तो 51, ये हो जाएगा 408। ऑलराइट ना 408, और ये आएगा कितना यहाँ से 408 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 17, और 408 डिवाइडेड बाई 34 ये आ जाएगा 12। सो वी गॉट 5/408। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 5/408। ऑलराइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यू जस्ट नीड टू एनालाइज द पैटर्न क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हम लोग 2 जीपी लगा सकते थे, एक बार पॉजिटिव वाले एक बार नेगेटिव वाले को। सो आई एडेड ऑल द नेगेटिव वाले नंबर्स को एक साथ एंड बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी। अ कंपनी हैज़ 40 एम्प्लॉयज़ हुज नेम्स आर लिस्टेड इन द सर्टेन ऑर्डर। वी डोंट नो किस ऑर्डर में रहेगा। In the year 2022, the average bonus of the first 30 employees was 40,000, and of the last 30 employees was 60,000, and the first and the last 10 employees together was 50,000. Next year, the average bonus of the first 10 employees increased by 100%, and the last employees increased by 200%, and the remaining employees remain unchanged. Okay, let's do one thing कि ये 40 employees को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ, 10 10 10 एंड 10 में। ठीक है, इट विल मेक क्वेश्चन ईजी टू सॉल्व दिस वे। ओके, आई टेल यू हाउ। तो पहले जो 30 एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि A प्लस B प्लस C, ये 30 एम्प्लॉयज़ का एवरेज था 40,000। ऑलराइट, तो सबका सम कितना हो जाएगा पहले 30 एम्प्लॉयज़ का? इफ़ यू नोटिस, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C विल बी इक्वल टू 112, राइट, दिस विल बी दिस मच। और अब बाद के 30 लास्ट 30 एम्प्लॉयज़ का भी कैसा होगा? सो B प्लस C प्लस D बाई 30, दे हैव अ सैलरी ऑफ 60,000। तो इनका टोटल सैलरी विल बी हाउ मच? ये हो जाएगा 18 0 0 0 0। ओके, नाउ दिस इज़ द टोटल सैलरीज। अब हमें क्या गिवन है कि फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 एम्प्लॉयज़ का, तो फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 मतलब हो गया A प्लस D, तो ये टोटल 20 हैं, और इनकी भी सैलरी कितने 50,000 है।
दिस इज क्वेश्चन इज गोइंग बियॉन्ड लिमिट, थोड़ा सा कैलकुलेशन में नंबर ज़्यादा आ गए हैं. ओके एनीवे, a प्लस डी विल बी इक्वल टू कितना 10 0 0 0 0. ऑलराइट, नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट. अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ तो b और c कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ ओनली थिंग विल रिमेन विज d माइनस a. उसमें भी हमें क्या बचेगा, समवेयर वी गॉट लेफ्ट विद 6 लाख का डिफरेंस आ जाएगा दोनों के बीच में. राइट, नाउ a प्लस डी यहाँ पे 10 लाख है और d माइनस a 6 लाख है, तो यहाँ पे ला के शिफ्ट कर देते हैं. d माइनस a ये होगा 6 लाख. ठीक है, 6 लाख ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. नाउ d की वैल्यू हो जाएगी 16 लाख और सिंगल d की वैल्यू हो जाएगी 8 लाख. ऑलराइट, नाउ वी नो देर आस्किंग कि पहले अगर d की वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू होगी 2 लाख. ओके, नाउ जस्ट रिमेंबर दीज टू थिंग्स क्योंकि बीच वाले सेम रहने वाले. उसने बोला कि पहले फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को उसने 100% से इंक्रीज़ कर दिया. नेक्स्ट ईयर द एवरेज बोनस ऑफ द फर्स्ट 10 एम्प्लॉयज से इंक्रीज बाय 100%. तो ये 100% ऑफ 2 लाख कितना होगा, 4 हो जाएगा. और इसको उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया 200% से. राइट, 200% से इंक्रीज़ कर दिया मतलब राइट. तो अगर आप उसको ये हो गया 24. राइट, 200% मतलब 16 लाख उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया. तो टोटल अब इंक्रीमेंट कितना हो गया, पूरा इंटायर सैलरी. वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन जस्ट पुटिंग द वैल्यू बैक इन टू द इक्वेशंस. देखो कहीं पे भी डी की वैल्यू डाल देते हैं, इस वाले में डाल दो चाहे तो यू सी 10 लाख इनका होगा, बी प्लस सी का 10 इनका हो गया, 8 लाख सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो, और बाद में ए प्लस डी की भी फाइनल सैलरी ऐड कर दो 24 और 4. तो 24 और 4 अगर 28 इनका हो जाएगा और टोटल मिला के हो गया 38. 38 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे 440 से तो यू विल गेट समवेयर 95,000. सो दिस विल बी द आंसर. ऑलराइट, नाउ दिस space crunch is there so I couldn't solve, but simple. Alright, let's move to the next question. PQRS are 4 towns. One can travel between P and Q along 3 different direct paths. Q and S along 4 direct paths, and between P and R along 4 direct paths. There is no direct path between P and S. And while there are few direct paths between Q and R and between R and S, one can travel from P to S either via Q or via R or via Q followed by R respectively in 2 exactly 62 possible ways. One can also travel from Q to R either directly or via P or via S in 27 possible ways. Then the number of direct paths between Q and R. Okay, P, Q. So there are 3 direct paths between Q and P and Q. Q to S, there are 4 direct paths. And between P and R there are total 4 direct paths. Okay, ये हो गया. Now there is no direct path between P and S. Okay, इनके बीच में कोई direct path नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई path नहीं है. While there are few direct path between Q and R, suppose इन दोनों के बीच में M path है और R S के बीच में भी few paths हैं between R S, तो इसके लिए भी N मान लेते हैं अलग से. One can travel from P to S. देखो P to S जाने के लिए he can go, अब डायरेक्टली तो जा नहीं सकता राइट. अगर उसको P to S जाना है तो वो जा सकता है इधर Q और R. अगर Q के थ्रू जाएगा तो 3 4 12 वेज होंगे राइट. R के थ्रू जाएगा तो 4N होंगे राइट. अगर इस तरीके से निकलता है तो.
और एक और तरीका है, इधर क्यू और आर और वाया क्यू फॉलोड बाय आर। तो अगर क्यू पर आया और फिर आर पे गया तो इस तरीके से जाते हैं। तो ही हैज़ 3 इंटू एम इंटू एन, 3 इंटू एम इंटू एन, तो ये टोटल हो गया इसके 62 पाथ वेज। नाउ इफ़ यू नोटिस तो 3m n प्लस 4n विल बी इक्वल टू 50। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अभी इसने बोला ऑल्सो वन कैन ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम क्यू टू आर ना, क्यू टू आर जाना है तो वाया पी और वाया एस ही जा सकते हैं। अगर वाया एस जाएगा इस तरीके से तो ही कैन गो 4n वेज में, राइट। या फिर वो डायरेक्टली जा सकते हैं m और ही कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम लाइक दिस। तो ये भी हो गया 12, तो ये हो गया इसके पास टोटल 27 पॉसिबल वेज। नाउ 4n प्लस m will be equal to 15. Okay, now they're asking for the number of direct path between Q and R. तो मुझे m की वैल्यू चाहिए। Now m की वैल्यू के लिए what we can do one thing, हम लोग ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ से, m की वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। 4n will be equal to 15 माइनस m, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। 3mn माइनस प्लस 15 माइनस m 50। नाउ 3mn, तो m कॉमन लिया यहाँ से, सो 3n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 35। नाउ यू कैन थिंक फॉर अ नंबर विच कैन सेटिस्फाई दिस कंडीशन। दिस कैन सेटिस्फाई few condition would be like 1 into 35 which is not a possible, or it can go like 7 into 35 which can possible. let's see, उसके लिए मुझे यहाँ पे 3n की वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेगी ये 5 में। कैन वी सब्सिट्यूट लाइक वी कैन यूज़ 2, n की वैल्यू 2 हो गया तो वी कैन क्रिएट 5 और m 7 हो जाएगा। तो दिस कुड मेक अ सेंस कि मैं m यहाँ पे 7 यूज़ करूँ, n इक्वल टू मैं 2 यूज़ करूँ, तो आई कैन मेक a satisfying condition. Now you can use in the above equation में कहीं पे भी, तो you can see this, like let's say 3 into 7 into 2 plus 4 into 2 equal to 50, right? 21, 42 and 8. Now 42 plus 8, this will be equal to 50. So हाँ, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ये सेट ऑफ वैल्यूज़। Now could be different values but ये सेटिस्फाई नहीं होंगे, like 1 by 35, 1 into 35, 5 into 7, ये 7 into 5, but 7 into 5 will be satisfied this condition. Okay, so the answer of this question will be 7. Let's move to the next question now. A fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. At the beginning of a day, the number of mangoes makes up 40% of the stock. That day he sells half of the mangoes, 96 bananas and 40% apples. At the end of the day, he ends up selling 50% of the fruits, the smallest possible number of fruits in the stock at the beginning of the day. Now, let's assume total number of fruits be 5x. Right, total number of fruits हो गए। इसमें अपने पर he has mangoes, bananas and apples. Right, let's see, mangoes are 40% of the stock, तो ये 2x होगा। Now something is banana, some part of it is a banana. That day he sells half of the mangoes and 96 bananas and 40% of the apples. Now 40% of the apple, let's take apples भी 5y ले लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने के लिए ईजी हो जाएगा। सो हाफ ऑफ द मैंगोज मतलब 2x का x पार्ट उसने सेल किया, 40, 96% 96 बनानाज एंड 40% ऑफ द एप्पल मतलब 2y, राइट। ही सेल दैट इज इक्वल टू 50% ऑफ द स्टॉक विच इज़ 0.5 ऑफ x, करेक्ट। लेट्स सी, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट, 50% ऑफ द 5x ना, तो ये 2.5x होगा, तो 96 प्लस 2y विल बी इक्वल टू 1.5x। नाउ 1.5x कितना होगा, 3/2, राइट। सो 3/2 ऑफ x विल बी इक्वल टू 96 प्लस
2y and x will be equal to 64 plus 4 by 3y. Right, now they're asking for the smallest possible number of fruits in the stock at the beginning of the day. Now what do you think what is the smallest value we can use for y? We can use y के लिए सबसे कम वैल्यू 3. अगर मैं 3 यूज़ करता हूँ तो x will be equal to 68. राइट, ना मिनिमम पॉसिबल ये इसी पे कंसिडर करेगा या इसी पे सेटिस्फाई करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने होंगे? 5 × 68. ये हो जाएगा अपने पास 5 8 40, 3 4 30, 340. So total number of fruits will be 340. Quite easy question. Let's move to the next.